پچھلے زمانے کا ذکر ہے۔ اسی گاؤں میں ایک موچی رہا کرتا تھا جو غیر شادی شدہ تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے جوتے سلائی کرتا۔ اسے جو پیسے ملتے وہ اپنا گزر بسر چلاتا۔ اس کی آمدن اتنی کم تھی کہ مشکل ہی سے پیٹ بھر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کھچنی کھانے کا دل چاہا۔ اس نے کئی دنوں سے کھچنی نہیں کھائی تھی۔ چنانچہ وہ بازار سے چاول اور مونگ کی دال لے کے آیا اور بڑے چاؤ سے کھچنی تیار کی۔ جب کھچنی پک کے تیار ہو گئی تو اس نے ایک بڑے سے تھال میں رکھ دیا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر اس نے سوچا جب تک کھچنی ٹھنڈی ہوتی ہے اتنی دیر میں لوگوں کے جوتے واپس دے کے آتا ہوں۔ یہ سوچ کر کھچڑی کو وہیں چھوڑ دیا، لوگوں کے جوتے واپس دینے کے لیے چلا گیا۔ اتفاق سے بندر بھی جنگل سے گھومتا گھومتا ادھر پہنچ گیا۔ اس نے جلاہے کا گھر خالی دیکھا تو اندر گھس آیا۔ جب اس نے سامنے سے دیکھا تو تازہ تازہ کھچنی پڑا ہوا تھا۔ بندر بھوکا تو تھا ہی، اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جلدی جلدی کھچنی کے پاس آیا۔ اس نے کھچنی کھانا شروع کر دی۔ کھچنی پوری نہیں کر دی تھی۔ بدقسمتی سے موچی بھی باہر سے آیا۔ موچی بھی کھچنی کھانے کے لیے بے تاب تھا اور اس سے جلدی تھی کہ جلدی گھر پہ جاؤں اور کھچنی کھا لوں۔ اسی لیے لوگوں کے جوتے جلدی جلدی دے کے واپس گھر آ گیا۔ لیکن اس نے گھر آ کے جب یہ دیکھا بندر بڑے مزے سے کھچڑی کھا رہا تھا، اس نے جلدی سے گھر کے دروازے بند کیے اور بندر کو رسی سے پکڑ کے باندھ لیا۔ اسی کے بعد موچی نے ایک بڑا سا موٹا ڈنڈا لیا، جی بھر کے اس کی مرمت کی۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھتا، ڈنڈا لے کر بندر کی ٹھکائی شروع کرتا اور جب تھک جاتا تو پھر اپنے کام کاج میں لگ جاتا۔ بندر ہی دل میں سوچنے لگا، اگر یوں ہی مجھے مارتا رہا زندہ بچنا محال ہے۔ بندر یوں ہی مار کھاتے جا رہا تھا اور وہاں سے نکلنے کی ترتیبیں بھی سوچ رہا تھا، مگر بندھا ہوا تھا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا پٹ پٹا خاموش ہو جاتا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی اور صبح جب موچی اپنے کام پہ گیا تو بندر سوچنے لگا، یہی موقع ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا، کوئی اچھی ترکیب سوچنی چاہیے۔ بندر کچھ دیر بعد بیٹھ کے سوچتا رہا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ارد گرد چکر لگا کر اپنے آپ کو رسیوں سے اور بھی جکڑ لیا اور اس طرح سے چلا رہا تھا جیسے اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہو۔ جنگل بالکل قریب تھا، اسی لیے جب دوسرے بندروں نے اس کی آواز سنی اور وہ بھی زور زور سے چیخنے لگے۔ جنگل میں جو بندر بولنے لگے تھے اس میں سے ایک اس بندر کا بھی دوست تھا جو کھچڑی کھا کے اسی مصیبت میں پھنس گیا۔ اس نے جب اپنے دوست کی آواز سنی تو یہ جاننے کے لیے اس کا دوست کہاں ہے اور وہ زور سے اور بھی چیخنے لگا، جو کہ اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا دوست اسی گاؤں میں ہے اور اس سے ڈھونڈنے کے لیے اسی گاؤں میں آ گیا۔ اس سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار موچی کے گھر پہ آ گیا۔ اس نے کان لگا کے سنا تو اسی کی آواز اسی موچی کے گھر سے آ رہی تھی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا دوست رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اسی کے قریب پہنچا، اپنے دوست سے پوچھا، کیوں دوست، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں تم پہنچے کیسے؟ اور بندھے ہوئے بندر کی اس طرح سے پٹائی ہو چکی تھی کہ سارا اس کا جسم سوج چکا تھا، تو اسی وجہ سے وہ موٹا تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس نے اپنے دوست کو پاس دیکھا تو اپنا درد چھپانے کے لیے قطرے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم تو عیش کر رہے ہیں دوست، تم تو جنگلوں میں مارے پھرو۔ دوسرے بندر نے جب اسے دیکھا تو واقعی وہ موٹا تازہ معلوم ہو رہا تھا۔ اسی نے اس سے سوال کیا، پھر بھی تم ہمیں بتاؤ، تمہیں یہ کامیابی کیسے ملی؟ رسیوں سے بندھے ہوئے بندر بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کہا، میں تمہیں راز یہ بتانے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ مجھے جلدی بتا دو۔
वो शर्त ये है तुम किसी को हरगिज नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे वादा ले सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दरअसल बात यह है कि मुझे निहायत रहमदिल नेक आदमी ने पकड़ लिया। वो मेरी बहुत खातर तवज्जो करता है और तुम देख नहीं रहे हो मुझे रस्सियों से कैसे जकड़ा हुआ है कि कहीं मैं अपने आप को छुड़ा के चला न जाऊं। फिर उसने अपने रस्सियों के ऊपर इशारा किया। देखो मैं किस तरह मोटा ताजा हो गया हूँ। वो आदमी मुझे हर रोज हलवा पूरी खिलाता है। दूसरा बंदर उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, काश ये मुझे मौका मिल जाए। हलवा पूरियों से उसके मुंह में पानी आ गया। बंधे हुए बंदर ने जब ये देखा कि इसका दोस्त उसके फरेब में आ चुका है, तो वो आस्था से अपने राजदारी में कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो और मैं अपनी जगह पे तुम्हें बांध लेता हूँ, और इस तरह से तुम भी मेरी तरह मोटे ताजे हो जाओगे और खूब ऐश करोगे। बाहर से आने वाला बंदर तो बेवकूफ हो ही चुका था, इसीलिए खुश हो के बोला, हाँ दोस्त, अच्छा है, तुम्हारी वजह से मैं भी 2-4 हलवा पूरी खा लूंगा। लो मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल देता हूँ, तुम अपनी जगह पे मुझे बांध दो। इसी के बाद बंधे हुए बंदर की रस्सियां खोल दी। बंधे हुए बंदर ने खुद आज़ाद होकर उसको बांध दिया और वहां से चलता बना। उधर जब मोची अपने काम से वापस आया तो उसने करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और बंदर की मरम्मत शुरू कर दी। और उससे क्या मालूम था कि ये वही बंदर है या कहीं और। उसी ने अपना गुस्सा उतारने के लिए बंदर पर लाठियां ऐसी बरसाई कि वो चीखता ही रह गया। वो बहुत घबराया। ये कैसा हलवा पूरी है जो रोज मुझे मिल रहा है। फिर वो कुछ ही देर खामोशी से पेटता रहा, लेकिन जब उसने देखा मोची तो किसी ही सूरत में बस ही नहीं कर रहा, उसने मोची से कहा, तुम मुझे ऐसी तरह से क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसी ने जब बंदर को देखा इंसानों की तरह बातें कर रहा था तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, ये क्या, इससे पहले तो ये नहीं बोलता था। उसने दिल में ख्याल किया, लगता है यकीनन ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, इसीलिए इसने कोई मुझसे बात नहीं की थी। लगता है अब शायद बहुत ये मार खा चुका है, इसलिए ये मुझसे बातें करना चाहता है। मोची ने 2-4 और डंडे बरसाए, कहने लगा, जब तक मैं अपनी खिचनी का बदला पूरा ना ले लूं, मैं तुम्हें इसी तरह से मारता रहूंगा। बताओ तुमने मेरी खिचनी क्यों खाई थी? बंदर बेचारे को अब पता चला, बेचारे मोची की खिचनी खाई थी, तो इसीलिए इसी को उसी ने बांध लिया था। उसने मोची से कहा, मैंने तुम्हारी कोई खिचनी नहीं खाई है। मैं जब यहाँ पे आया एक बंदर रस्सियों से बांधा हुआ था, उसने मुझे बताया अगर तुम मेरी जगह पे बंध जाओ हर रोज ही हलवा पूरी तुम्हें खाने को मिलेगी, लिहाजा मैंने उससे खोल दिया और उसने खुद अपनी जगह पे बांध कर और वो चला गया, और तुम आए हो तो आते ही तुमने पिटाई शुरू कर दी है। मैं तुम्हारे सब मकर जानता हूँ। इतना कहकर उसने 2-4 डंडे बंदर के कमर पर तोड़ दिए। बंदर और भी घबराया और सोचने लगा, लगता है ये तो मुझे जान से ही मार देगा। चनाचित मोची की मिन्नतें करते हुए बोला, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो और मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। क्या कहा? बादशाह की बेटी से मेरे से शादी? ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ मैं गरीब मोची और कहाँ वो बादशाह की बेटी? क्या मुझे तुम बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, मैं सच में तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। क्या वाकई ही? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुमसे वादा करते हुए कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। मोची ने बंदर की ये बातें सुनकर उसे आज़ाद किया। बंदर आज़ाद होने के बाद मोची से कहने लगा,
तुम घर में ठहर कर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही जल्दी खुशखबरी लेके आऊंगा। इतना कहकर बंदर वहां से रुखसत हो गया। बंदर गांव से निकलकर दरिया के किनारे आकर पहुंच गया। उसने दरिया को पार किया और उसने दूसरे किनारे पहुंचकर इंसानी धार किया। दरिया के उस पार दूसरे बादशाह की हुकूमत थी, जिसका महल दरिया से कुछ ही मुफासला था। उसी ने अपने आप को इल्ची बना दिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उससे देखा तो पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हैं और यहाँ किस गर्ज से आया है? बादशाह सलामत, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का इल्ची हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो बड़ी इज्जत से पेश आया और उससे अपने पास बुलाया, बैठने की जगह दी और उससे पूछा, ए इल्ची, कहो तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या पैगाम है? ए बादशाह, हमारा बादशाह अभी तक कंवारा है, आपकी बेटी के लिए शादी के लिए पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से हुआ कि उस बादशाह की एक ही बेटी थी और वो जवान थी और बादशाह उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान था और वो इसी इंतजार में था। और वो परेशान था कि किसी संतलत से किसी बेटी का रिश्ता आ जाए। जब वो देखा कि रिश्ता खुद ब खुद आया है तो वो बहुत खुश हुआ। इल्ती से उसने कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। और साथ में उसी ने शादी की तारीख भी तय कर दी। इल्ची को बहुत ही धन दौलत दे के रुखसत किया। इल्ची वहां से रुखसत हो के दरिया पहुंचा। फिर वो बंदर के रूप में आ गया और दरिया पार करके गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर सीधा मोची के घर पर पहुंचा। आगे मोची भी उसका मुंतजर था। उससे देखकर ही खुश होकर बोला, क्या खुशखबरी लेके आए हो मेरे लिए? तुम्हारी शादी की बात तय हो गई है और फला तारीख को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मोची ने घबरा कर कहा, मगर मेरे पास तो पोटी कोरी भी नहीं है। तुम फिक्र ना करो। और मोची को हैरान परेशान छोड़ के चला गया। हकीकत ये थी कि मोची को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि किसी बादशाह की बेटी से शादी होगी। ये अनहोनी बात थी कि उसी तारीख सुबह बंदर पहुंच गया कि और उससे ताज्जुब हुआ। बंदर ने कहा, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी बादशाह की बेटी से शादी है। भला मोची को क्या सामान लेना था। वो खामोशी से बंदर के पीछे चल दिया और बंदर उसे अपने साथ लेकर गांव के बाहर उस दरिया के किनारे पहुंचा। उसी किनारे एक धोबी कपड़े धोने के लिए आया हुआ था। बंदर ने उसे सोने की एक मोहर दी और कहा, तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं इन्हें आसपास दरख्तों और झाड़ियों में फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने की मोहर मिल चुकी थी। उससे और क्या चाहिए था। उसने वो कपड़े वो गठरी बांध कर ले आया था। बंदर के कहने के मुताबिक दरिया के झाड़ियों और दरख्तों पर फैला दिए। बंदर ने जब देखा कि उसने कपड़े फैला दिए हैं कि एक रुई बेचने वाले के पास गया और उसे एक सोने की मोहर दे के बोला, तुम धुनी हुई रुई के चंद गट्टे दरिया में पहुंचा दो। रुई बेचने वाले आदमी ने सोने की मोहर लेकर धुनी हुई रुई के गट्ठे दरिया में फैला दिए। जब ये सब कुछ हो चुका, बंदर ने जुलाई से कहा, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसी के बाद बंदर ने मोची को समझाते हुए कहा, मैं दरिया के उस पार जा रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ से वहाँ तक जाते हुए देखते रहना। जब तुम देख लो बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूँ कि तुम धोबी से कहना तुम सारे कपड़े समेट के लेके जाओ जो दरख्तों और झाड़ियों में फैलाए हैं। उसी के बाद धुनी हुई रुई के गट्ठे करके थोड़ी थोड़ी रुई दरिया में डालते शुरू कर देना, बाकी मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। बंदर ने मोची को ये हिदायत देकर दरिया में तैरते हुए उस पार पहुंचा और उसने वहां पर पहुंचकर फिर इल्ची का रूप धार दिया और बादशाह के महल की तरफ चला गया। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी की तैयारियां करके बैठा था। बारात का मुंतजर था। उसी ने इसी इंतजार में
महल की छत के ऊपर चढ़ा। देखा, धोबी ने जो झाड़ियों दरख्तों पर कपड़े फैलाए हुए थे, उन्हें देख के बादशाह को यूं लगा जैसे कि दरिया के उस पार पड़ाव फैला दिया और यहाँ पहुँचने वाली है, और उसी इंतज़ार में बैठा था। बंदर ने जैसे ही इल्ची के रूप में बादशाह के दरबार में आया, पीछे मोची ने बंदर के कहने के मुताबिक इसी के बाद ही जल्दी जल्दी रुई के धुले हुए बड़े बड़े गाले दरिया में डाले लगा। रुई के गाले डूबते तैरते वहाँ से मालूम हो रहे थे जैसे बड़ी बड़ी कश्तियाँ दरिया में डूब और तैर रही है। उधर जैसे इल्ची बादशाह के महल में पहुँचे और उसने रोना धोना शुरू किया। इससे रोता पीटता बादशाह ने परेशान होके पूछा, तुम्हें क्या हुआ और शहजादी की बारात कहाँ है? बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया को पार करने वाला था कि जबरदस्त किस्म का तूफान आ गया। तमाम साजो सामान, अमीरो वजीर, रिश्तेदार और फौज के आदमी कश्तियां समेत ही डूब गए। और हमारा होने वाला दामाद कहाँ है? क्या वो भी डूब गया? बादशाह सलामत, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह सिर्फ बच गए हैं, और वो भी तन के कपड़ों के साथ। और बादशाह सलामत का लिबास भी झेर झेर हो गया। एक गरीब ही आदमी से कपड़े लेकर पहनाए गए हैं। मगर वो इस वक्त है कहाँ? हजूर, इस वक्त दरिया के किनारे तन्हा अकेले बैठे हुए हैं। ये सुनते ही बादशाह ने वजीरों को हुक्म दिया। हुक्म की देर थी, उसी वक्त ही महल में फौज के सिपाही मोची को ले आए। उसी वक्त धोबी ने सारे कपड़े समेट के जा चुका था और रुई के बड़े बड़े गाले डूब चुके थे। सिर्फ धोबी हैरान परेशान दरिया के किनारे बैठा था। ये सब कुछ देख रहा था। उसी के बाद मोची को कश्ती में या पार करवाया गया और बड़े शाले शौकत से महल में पहुंचा दिया। जब बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को पाया, बहुत खुश हुआ। इस तरह से शहजादी और मोची की धूमधाम से शादी कर दी थी। शादी के बाद इल्ची ने बादशाह से कहा, आलब पना, अगर आप इजाजत दे तो एक बात अर्ज करूं। जरूर कहो, मेरी तरफ से इजाजत है। आलिम पना, आपके दामाद का सब कुछ लुट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, अमीर वजीर सब डूब गए हैं। अब वो बिल्कुल तन्हा है। पीछे खबर नहीं महल में भी किसी ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि बारात की तबाही की पीछे खबर पहुंच चुकी है। इसीलिए इसका वापस जाना बेकार है। इसे यहीं रुकने के लिए मजबूर किया जाए। इत्तेफाक से बादशाह पहले ही यही सोच रहा था। बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। उससे इल्ची की ये बात बहुत पसंद आई। उसने दिल में सोचा, मुझे भी सल्तनत में मेरे हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। क्या हमारा दामाद इस बात को मान जाएगा? हजूर, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं उन्हें राजी कर लूँगा। बादशाह खुश था। इस तरह से उसकी बेटी भी उसकी आंखों के सामने ही रहेगी। वो अपनी बेटी से प्यार करता था। चनाचर मोची को वहीं पे एक महल दे दिया, जहाँ शाही शौकत से रहने लगा। बंदर भी इल्ची के रूप में उसके साथ रहा। एक रोज मोची से कहने लगा, देखो, मैंने जो आपसे वादा किया था वो मैंने अपना पूरा कर लिया। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाके मिलूं। मोची ने उससे बहुत रोका, लेकिन उसी ने नहीं माना और वहां से रुखसत हो गया। और वो अपने रूप में आ गया। बंदर की सूरत में अपने दोस्तों के साथ जाके मिला।